السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ جیسا کہ ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر، آج ہم جو تفسیر کرنے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، لیکن دراصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ ایمان والے نہیں ہوتے بلکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو اور اللہ کو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ نہ کر کے کہتے ہم ایمان والے ہیں۔ یہ منافقین کی بات اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دراصل میں ایمان والے نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ الا انفسهم وما یشعرون، مگر یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہے حج نہیں کرتا، تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ ابھی کسی شخص سے پوچھو، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ نہیں کرتا، آزاد گھومتا ہے، برے عمل کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھو میں تو مسلمان ہوں۔ کیوں کہتا ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے وہ آپ کو لیبل لگایا ہوا ہے میں مسلمان ہوں، اور دراصل میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے۔ وہ جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا
वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिल में कुफ्र की बीमारी है, इनके दिल में कुफ्र की बीमारी है, निफाक है इनके अंदर। ये मुनाफिकीन है जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, मुनाफिक हैं, खुले हुए मुनाफिक हैं। और झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। यही लोग मुनाफिक है पक्के, ये झूठ बोलते हैं, अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ईमान वालों को भी दे रहे हैं। तो ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, ये तो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन शऊर नहीं है इन बेचारों को। तो आगे अल्लाह ने फरमा दिया, फी कुलूबिहिम मराजुन फज़ादहुमुल्लाहु मराजा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्सिबून। इनके दिल में कुफ्र की बीमारी थी, इनके दिल में कुफ्र की बीमारी थी, मजीद हमने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, इनकी बीमारी को हमने और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिमा कानू यक्ज़िबून, इनके झूठ की वजह से, इनके झूठ की वजह से हमने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। क्योंकि झूठे मक्कार हैं लोग, ये झूठा दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, झूठा दावा करते हैं। अल्लाह ताला कह रहा इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। क्यों? इन्होंने झूठ बोला और हमने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया। कुफ्र में, कुफ्र की बीमारी थी इनके दिल में, लेकिन मजीद हमने इनकी बीमारी को और बढ़ा। क्योंकि बार बार झूठ बोल रहे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले, और दरअसल में वो ईमान वाले हैं ही नहीं। तो आज से मुराद ये मुनाफिकीन है। और ये सिर्फ आपको, आपके घरों को झांक झांक के देखो, जरूर मिलेगी। आज मुसलमान भी यही कहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज फर्ज है, हज नहीं करते, बुरे अमल करते हैं, और कहते हैं हम तो मुसलमान हैं। ये आयत उन्हीं लोगों पर फिट होती है जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, उन्हीं के ऊपर फिट है। और बुरे अमल करते फिरते हैं, बेईमानी करते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं, दूसरों की गीबतें चुगली करते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं, ये लड़ाते हैं एक दूसरे की, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, चुगली करके एक दूसरे को लड़ाते हैं। तो यही वो ऐसे मुसलमान हैं। ये अल्लाह ताला कह रहा है ये ईमान वाले नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें कहाँ धोखा दे सकते हैं? अल्लाह को धोखा दे सकता है कोई? हरगिज़ धोखा नहीं दे सकता अल्लाह को कोई भी। अल्लाह ताला हमारी सह रख के ज़्यादा करीब है। हम जो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह ताला उसको भी जानता है। काली रात में काली चूंटी काले पहाड़ पर चलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कदमों की आहट को भी सुनता है, उसके कदमों की आहट को भी सुनता है। तो ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ईमान वाले इनके झांसे में जरूर आ सकते हैं, इन मुनाफिकों के ईमान वाले जरूर झांसे में आ सकते हैं, लेकिन जिनको सही इल्म है, जो जानते हैं, वो भी इनके झांसे में नहीं आने के। साफ कहेंगे तो मुनाफिक है भाई। जाहिर में तो उसको फतवा वही लगेगा ना, जब अमल नहीं कर रहा, जाहिर में फतवा क्या लगाएंगे? तहरीर के मुताबिक फतवा मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये धोखा देते हैं और ईमान वालों को भी, लेकिन ये यकीन अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं, लेकिन ला यशऊरून, शऊर नहीं रखते। तो अल्लाह ने मजीद इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। इनके दिल में कुफ्र की बीमारी थी और अल्लाह ने उसको बढ़ा दिया। और इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। मराजुन फज़ादहुमुल्लाहु मराजा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। अज़ाबुन अलीम, और ये झूठे हैं, मक्कार हैं, तो इनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा। अल्लाह ताला जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔